Dear friends, this is the last topic of the Laplace transform chapter. This is applications to differential equation. Which application? Application of Laplace transform to differential equation. Laplace transform is very useful to solve the differential equations and the initial value and boundary value problems. Okay. The advantages of this Laplace transform method over the classical method to solve the differential equation is that it solves the solution of the given differential equation directly without the finding of the complete or the general solution and the arbitrary constants. Okay, for this method we use the Laplace transforms of the derivatives. There are some Laplace transform of the derivatives. Okay, we know if Laplace transform of the function f of t is equal to capital F of s. Okay, so in differential equation, in ordinary differential equation, we have some terms dy by dt, d square, y by dt square. So we have to first write the Laplace transform of this first order, second order, third order derivatives. So we write first. Similarly, if Laplace transform of the function of t, y of t is equal to capital Ys, okay, if Laplace transform small f of t equal to capital F of s, then Laplace transform of small yt equal to capital Y of s. The first formula, Laplace transform of dy by dt, Laplace transform of dy by dt also denoted as y dash, okay. These two notations are same. Dy by dt is y dash. Laplace transform of dy by dt or Laplace transform y dash is s capital Y of s minus y dash 0, y of 0. Next, Laplace transform of d square y by dt square equal to Laplace transform, same notation, d square by dt square को नोटेशन क्या होगा y डबल डैश. तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन या तो y डैश y डबल डैश के फॉर्म में होगा या फिर dy by dt या d स्क्वायर y by dt स्क्वायर के फॉर्म में होगा. तो दोनों के लिए अगर कौन सा भी नोटेशन आए तो हम फार्मूला एक ही लिखेंगे. ओके, डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ होगा s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस साइन y डबल डैश ऑफ 0. ओके, नेक्स्ट Laplace transform of third order derivative d cube y by dt cube, which also can be denoted as Laplace transform of y triple dash, third derivative. This is third derivative. S cube y of s minus s square y0 minus s y dash of 0 minus y double dash of 0 होगा. s cube y s minus s square y0 minus s y dash of 0 minus y double dash of 0. For double order Laplace transform, s square y of s minus s y of 0 minus y dash of 0. Okay, and so on. We can also use for fourth order derivative. Okay, so we use these Laplace transform derivatives to solve the solution of differential equation. Okay, we have to use these Laplace transforms of derivatives. Okay, so we now take some examples. Okay, solution of ordinary differential equation with constant coefficients, ओके. तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल क्या होगा, सॉल्व द डिफरेंशियल
example, solve the differential equation which satisfies the following conditions. First example first, y double dash minus 3y dash plus 2y equal to 12 e raised to minus 2t, and initial conditions are given: y of 0 equal to 2 and y dash of 0 equal to 6. These two initial conditions are given. Our differential equation is y double dash minus 3y dash plus 2y equal to 12 e raised to minus 2t. Okay, given y double dash minus 3y dash plus 2y equal to 12 e raised to minus 2t. Okay, first we have to operate the Laplace transform on both sides. तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे? Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे. अप्लाई Laplace transform on both sides. We get Laplace ट्रांसफॉर्म में मालूम है लिनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. तो यह जो Laplace ट्रांसफॉर्म में इस माइनस साइन से प्लस साइन से क्या हो जाएगा? सेपरेट. और जो Laplace मतलब जो भी डेरिवेटिव के आगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के आगे जो भी कांस्टेंट्स है वो हम क्या कर सकते हैं? Laplace ट्रांसफॉर्म के बाहर ले सकते हैं. तो यह Laplace ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश माइनस 3 कैसा है? कांस्टेंट, Laplace के बाहर. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश प्लस 2 कैसा है? कांस्टेंट है. 2 Laplace ट्रांसफॉर्म के बाहर आएगा. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ y इक्वल टू इस दोनों साइड पे हमें Laplace ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है. तो 12 भी क्या हो जाएगा? Laplace ट्रांसफॉर्म के बाहर. तो Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सिर्फ e raised to minus 2t. ओके, तो नेक्स्ट जैसे कि हमने देखा है, अभी लिखा था, आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं कि Laplace ट्रांसफॉर्म y डबल डैश क्या लिखा था? ये लिखा था s स्क्वेयर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश ऑफ 0. ये फॉर्मूला हमने लिखा था. सेम फॉर्मूला लिखा. -3 माइनस क्या है? 3, और 3 के आगे मैं क्या लिखता हूं? ये Laplace ट्रांसफॉर्म y डैश की वैल्यू लिखता हूं. आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं. Laplace ट्रांसफॉर्म y डैश क्या लिखा था? s y ऑफ s माइनस y 0 प्लस क्या? या प्लस 2. यहां दो टर्म्स थी इसलिए मैंने Laplace ट्रांसफॉर्म y डैश की वैल्यू क्या लिखी? ब्रैकेट में लिखी है. ओके, 2 इंटू Laplace ट्रांसफॉर्म y, जैसे कि मैंने लिखा था Laplace ट्रांसफॉर्म f ऑफ t क्या था? f ऑफ s. वैसे Laplace ट्रांसफॉर्म y क्या आएगा? कैपिटल y ऑफ s इक्वल टू या क्या है? 12. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to minus at क्या आता है? 1/s प्लस a आता है. क्या आता है? 1/s प्लस a. तो यह क्या आएगा? 12 इंटू Laplace ट्रांसफॉर्म e raised to minus 2t माइनस at माइनस 2t. a क्या होगा? 2 होगा. तो आंसर क्या आएगा? 1/s प्लस a होगा. a मतलब कितना? यहाँ 2 है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया. तो चलो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो इनिशियल कंडीशंस है y0 इक्वल टू 2 एंड y डैश 0 इक्वल टू 6, ये हम पुट करते हैं. ओके, तो s स्क्वेयर y ऑफ s एज इट इज माइनस s एज इट इज y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 2 है. कितनी है? यहाँ 2. ओके, माइनस y डैश ऑफ 0 कितना है? 6. नेक्स्ट -3 इंटू s y ऑफ s एज इट इज
y ऑफ s की वैल्यू नहीं है। इनिशियल कंडीशन y0 कितना है, y0 है 2, y0 है 2। ओके, नेक्स्ट प्लस 2 y ऑफ s इक्वल टू 12 अपॉन s प्लस 2। नेक्स्ट s स्क्वायर y ऑफ s एज इट इज माइनस 2 या s 2s माइनस 6 एज इट इज। क्यों, सिर्फ ये कैलकुलेशन बाकी है। ये 3 से मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है देखते हैं, फिर बाद में s स्क्वायर s के कोएफिशिएंट्स में कॉमन लेता हूं। तो 3 इंटू s इंटू y ऑफ s क्या होगा, 3s y ऑफ s। ओके, माइनस 2 इंटू 3, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 प्लस 2 इंटू क्या, y ऑफ s इक्वल टू 12 अपॉन s प्लस 2 एज इट इज। नेक्स्ट अब मैं y ऑफ s कॉमन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, y ऑफ s मैं कॉमन लेता हूँ। तो y ऑफ s अगर मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ s स्क्वायर है माइनस y ऑफ s ओनली। देखो यहाँ y ऑफ s की टर्म है, यहाँ भी y ऑफ s की टर्म है और यहाँ भी y ऑफ s की टर्म है। तो वो s स्क्वायर माइनस 3s या क्या है प्लस 2 ली मैंने, y ऑफ s कॉमन लिया और बाकी की टर्म ब्रैकेट में लिखी। नेक्स्ट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स कौन से है देखता हूं मैं। यहाँ माइनस 2s है, ओके, माइनस 2s है, माइनस 6 है और प्लस 6 है। प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यह क्या रहेगा सिर्फ अभी माइनस 2s, क्या है माइनस 2s। अभी ये y ऑफ s लिया था, पहले y ऑफ s कॉमन लिया था, पहले y ऑफ s कॉमन लिया था। 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, ओनली बचा है माइनस 2s। या क्या बचा है माइनस 2s इक्वल टू 12 अपॉन s प्लस 2। इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे हमें, इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 आना चाहिए एंड एडिशन माइनस 3 आने चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, माइनस 2 एंड माइनस 1। माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 आता है एंड माइनस 2 माइनस 1 की एडिशन माइनस 3 आती है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा, s माइनस 1 एंड s माइनस 2। ओके, यहाँ बाहर y ऑफ s लेगा। ये माइनस 2s क्या करना है आपको, उस साइड पे शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको क्या लिखना है, y ऑफ s इक्वल टू आंसर लिखना है। तो यहाँ आएगा 12 अपॉन s प्लस 2, माइनस 2s उस साइड पे क्या होगा, प्लस 2s हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2s। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, या दोनों को मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन क्या आएगा, कैलकुलेशन आएगा 12 अपॉन s प्लस 2, s प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 2s स्क्वेयर। क्या मिलेगा 2s स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 2s क्या होगा प्लस 4s एंड ये पहले क्या था प्लस 12 एज इट इज, न्यूमरेटर पे था तो एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या हो गया s प्लस 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट यह क्या है s प्लस 1 s माइनस 2 y ऑफ s माइनस 1 s माइनस 2 और यह क्या है y ऑफ s। तो हमें फंक्शन ऑफ s फाइंड करना है। तो फंक्शन ऑफ s फाइंड करना है, इसलिए मैंने क्या किया y ऑफ s कॉमन लिया, बाकी सब जो भी टर्म्स थी वो RHS में मैंने शिफ्ट की। अभी मुझे y ऑफ s इक्वल टू लिखना है, तो क्या आएगा y ऑफ s इक्वल टू, तो y ऑफ s मुझे मिलेगा y ऑफ s इक्वल टू, तो ये दोनों भी ब्रैकेट क्या हो जाएंगे या डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ की टर्म एज इट इज 2s स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 12 अपॉन यहाँ क्या है s प्लस 2 है। ओके, तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, s माइनस 1 s माइनस 2। ओके, अभी मुझे फंक्शन ऑफ s मिला है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy बाई dt में है, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वेयर
प्लस 2 dy बाई डी टी, ओके, या फिर y डबल डैश प्लस 2y डैश इस फॉर्म में है, तो उसका सोल्यूशन क्या आता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t आता है। क्या आता है, y इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन ऑफ t। तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y था, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है, ओके। y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई बाय y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, y इज फंक्शन ऑफ t में आएगा। लेकिन यहाँ हमने क्या फाइंड किया अभी तक, फंक्शन ऑफ s फाइंड किया। अगर इस फंक्शन ऑफ s का आपको पता है, अगर फंक्शन ऑफ s का अगर आप इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो तो आपको क्या मिलता है, f ऑफ t मिलता है। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ s y ऑफ s का अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो आपको क्या मिलेगा, y ऑफ t, मतलब y क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ t मिलेगा, ओके। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, ओके। इसलिए हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अभी फाइंड करने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, नाउ अप्लाई टेक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ s इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 अपॉन s माइनस 1, s माइनस 2 एंड s प्लस 2, ओके। तो हमने अलग अलग मेथड्स देखी है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की। तो इसमें से मुझे कौन सी मेथड याद दिखाई दे रही है, कौन सी मेथड कि यह है पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से मैं ये एग्जांपल सॉल्व कर सकता हूं, इसका इनवर्स मैं फाइंड करता हूं। अभी देखो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ s क्या मिलेगा, y ऑफ t मिलेगा। अभी क्या सिर्फ बाकी है, आपका इस राइट हैंड साइड का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना बाकी है। तो कौन से मेथड से, हमने 3 अलग अलग मेथड्स देखी थी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने की। तो उसमें से मुझे डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है s माइनस 1, s माइनस 2, s प्लस 2, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, रिड्यूसिबल, ओके। तो इस रिड्यूसिबल फैक्टर्स का अगर मैं, इस पॉलिनोमियल का अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लेता हूं तो मुझे जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेना है, ओके, किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से उसका सोल्यूशन लिया जाता है, इसका वीडियो हमने बनाया है, वो आप देख सकते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है मैं शॉर्टकट में यहाँ बताता हूँ और डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ लिखता हूँ, ओके। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अभी इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे इस टर्म का। तो ये टर्म है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो यह क्या है, 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 अपॉन s माइनस 1, s माइनस 2, s प्लस 2 इक्वल टू, यह तीनों कैसे है, डिफरेंट फैक्टर है और भी रिड्यूसिबल है। तो उसके लिए क्या आएगा, a अपॉन s माइनस 1 प्लस b अपॉन s माइनस 2 प्लस c अपॉन s प्लस 2 आएगा, s माइनस 2, s प्लस 2, ओके। ये फैक्टर्स आए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो यहाँ मुझे ABC फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं, ABC। तो एक सिंपल मेथड मैंने बताई थी उस वीडियो में कि इसका ABC कांस्टेंट कैसे फाइंड करने। तो A इक्वल टू, तो A कांस्टेंट फाइंड करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स के लिए, तो A कांस्टेंट फाइंड करने के लिए फंक्शन एज इट इज लिखना है, 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 न्यूमरेटर एज इट इज। लेकिन डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म नहीं लेनी है, कौन सा फैक्टर नहीं लेना है, जो A का डिनोमिनेटर है। A का डिनोमिनेटर क्या है, s माइनस 1। तो यहां मैं s माइनस 1 नहीं लूंगा, तो क्या होगा, s माइनस 2, s प्लस 2, ओके। तो यहाँ क्या पुट करना है, इस फंक्शन में क्या पुट करना है, a का जो डिनोमिनेटर है क्या है, s माइनस 1, s माइनस 1 मतलब s इक्वल टू कितना, प्लस 1, s इक्वल टू प्लस 1। सिमिलरली आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ b कांस्टेंट, ओके। b कांस्टेंट के लिए ये फंक्शन पूरा एज इट इज लिखना है एक्सेप्ट द डिनोमिनेटर ऑफ b, ओके। तो यह क्या है, 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 अपॉन, क्या नहीं लिखना है, सिर्फ s माइनस 2 लिखना है। तो ये दोनों ब्रैकेट आ जाएंगे, s माइनस 1
एस प्लस टू, और यहाँ बाहर इस फंक्शन में क्या पुट करना है, b का जो डिनोमिनेटर है एस माइनस टू, तो क्या होगा, एस इक्वल टू टू होगा, एस इक्वल टू टू। ओके, तो c इक्वल टू, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम सिर्फ c का डिनोमिनेटर नहीं लेना है, c का डिनोमिनेटर क्या है, s प्लस टू, तो यहाँ इस फंक्शन में s प्लस टू नहीं लेना है, तो क्या होगा 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 अपॉन s माइनस वन s माइनस टू। ओके, तो यह इस फंक्शन में मुझे क्या पुट करना है, जो s c का डिनोमिनेटर है s प्लस टू, तो s इक्वल टू कितना होगा, माइनस टू। ओके, ऐसा पुट करने के बाद अगर आपने यहाँ s इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन s माइनस टू, मतलब 1 माइनस टू कितना होगा, माइनस वन, इंटू s प्लस टू, 1 प्लस टू कितना हो जाएगा 3, तो यह आंसर कितना आएगा, 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18, 18 अपॉन माइनस 3 कितना आता है, माइनस 6। नेक्स्ट फॉर b, पुट s इक्वल टू 2 इन दिस फंक्शन, s इक्वल टू 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 8 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइड बाय s माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 2 4, 16 28, 16 प्लस 12 28 अपॉन 4, 7 आंसर है, इक्वल टू c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, तो c इस फंक्शन में s इक्वल टू क्या पुट करना है, माइनस टू पुट करना है, तो अगर माइनस टू पुट किया तो यह 8 आएगा, 4 इंटू 2 8, यहाँ माइनस 8 आएगा, 4 इंटू माइनस टू माइनस 8 प्लस 12 अपॉन, यह माइनस टू पुट कर रहे, माइनस टू माइनस वन माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 4 होगा। ओके, नेक्स्ट इक्वल टू प्लस 8 माइनस 8 कैंसल, 12 अपॉन माइनस 12 कितना आंसर आएगा, माइनस 1। ओके, सॉरी माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12 होगा, तो यह क्या आएगा, 12 अपॉन 12 1 आंसर आएगा, कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। ओके, तो c की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 एंड a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 6। तो तीनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम, यहाँ माइनस 6 आ रही है, यहाँ 7 आ रही है, और यहाँ c की वैल्यू कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है प्लस 1 आएगी। ओके, यहाँ हमें क्या चाहिए, इस पूरे फंक्शन का, इस पूरे पॉलिनोमियल का हमें क्या चाहिए, इनवर्स लैप्लास। तो दोनों साइड का हम क्या करते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ओके, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन से हमने ये ऊपर न्यूमरेटर के कांस्टेंट्स फाइंड किए। तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 अपॉन s माइनस 1 s माइनस 2 s प्लस 2। ओके, तो इस साइड की भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ओके, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो -6 कांस्टेंट है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर, 1 अपॉन s माइनस 1, यह क्या है +7, वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर क्या आएगा, 7 अपॉन s माइनस 2 प्लस थर्ड टर्म का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उधर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2। अब लास्ट स्टेप बाकी है, -6 इंटू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म s माइनस 1, लैप्लास इनवर्स, दो फार्मूला है हमारे पास, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a। इसका आंसर आता है e रेज़ टू माइनस at और इसका आंसर आता है e रेज़ टू प्लस at। तो देखो यहाँ 1 अपॉन s माइनस a के फॉर्म में है, तो उसका आंसर आएगा e रेज़ टू at। e रेज़ टू क्या होगा, a की वैल्यू 1 है, e रेज़ टू 1t। नेक्स्ट क्या है, +7 एज इट इज, यह भी 7 कांस्टेंट था, वो हमने ऑलरेडी बाहर लिया है, तो यह 1 रहेगा। ओके, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 मतलब a की वैल्यू कितनी, 2, आंसर कितना आता है e रेज़ टू at, a की वैल्यू कितनी 2, इसलिए e रेज़ टू 2t। नेक्स्ट प्लस साइन, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2, अब कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला, 1 अपॉन s प्लस 2 का आंसर कितना आता है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू माइनस at, मतलब यहाँ a कितना है 2, तो e रेज़ टू माइनस 2t होगा, क्या होगा
देखो अभी हमने ये दो फॉर्मूले यहाँ यूज किए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। देखो अभी देखो यहाँ इसका लैप्लास इनवर्स आया, ये क्यों फाइंड किया सेपरेटली, क्योंकि इस स्टेप में यहाँ जगह नहीं थी, या फिर हम यहाँ सेपरेट फाइंड करके भी यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका लैप्लास इनवर्स हमने यहाँ फाइंड किया, वो ये आया और ये हमने यही यहाँ पुट किया। ओके, लास्ट आंसर में। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। y डबल डैश था उसमें y डबल डैश या y डैश, इसका मतलब क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी टी। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t, तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, y इज फंक्शन ऑफ t। तो देखो हमने पहले y ऑफ s फाइंड किया, y ऑफ s का अगर लैप्लास इनवर्स लिया तो क्या आता है, फंक्शन ऑफ t मिलता है। सेम राइट हैंड साइड का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो भी क्या आया, फंक्शन ऑफ t। तो ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर फ्रेंड्स, तो हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ओके, सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड which satisfy the following condition y0 equal to 1 and y dash 0 equal to -2। क्वेश्चन दो टाइप से हो सकता है, बाय फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन which satisfies these two conditions। okay, these initial conditions are given। so first we write this differential equation as it is। okay, ये as it is लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर फर्स्ट स्टेप क्या होगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। तो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ टी है, तो इस पर हम क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ टू कैसे है, कॉन्स्टेंट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर, डी वाई बाई डी टी प्लस Laplace transform of y equal to Laplace transform of t into e raised to minus t। okay, so now we applied Laplace transform on both sides। we know the Laplace transform of second order derivative, इसके लिए आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, फॉर्मूला लिखा था हमने, s स्क्वायर y ऑफ s माइनस s y ऑफ 0 माइनस y dash of 0। okay, Laplace transform second order derivative। okay, next plus 2 into Laplace transform first order derivative, क्या होगा, s y of s minus y of 0। okay, plus Laplace transform of y क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तो Laplace transform y of t क्या आएगा, y of s होता है of s इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म t इंटू e रेज़ टू माइनस t। तो देखो t से मल्टीप्लाई है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी यूज करनी है। जब t से मल्टीप्लाई रहता है तो t से मल्टीप्लाई रहता है तो -1 रेज़ टू t का पावर कितना है, 1 t का पावर 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s। ओके, और क्या लिखना है आगे, यहाँ फंक्शन ऑफ s लिखना है, कौन सा, e रेज़ टू माइनस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो e रेज़ टू माइनस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है 1/s प्लस 1। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी से आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट s स्क्वायर y ऑफ s एज इट इज माइनस s इंटू y ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है, y ऑफ 0 की वैल्यू 1 गिवन 1 माइनस y डैश ऑफ 0 कितना है, -2 है, कितना है, -2। नेक्स्ट या प्लस साइन है 2 इंटू s y ऑफ s एज इट इज माइनस y डैश y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस यह क्या है, y ऑफ s इक्वल टू माइनस साइन होगा और इंटू 1/s प्लस 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s क्या आता है, जैसे 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x स्क्वायर, वैसे 1/x प्लस b का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x प्लस b क्या है, सपोज s प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, सेम
1/x प्लस बी का डेरिवेटिव आता है -1/x प्लस बी, और यहाँ a मल्टीप्लाई करते हैं, यस का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट यस स्क्वायर वाई ऑफ एस एज इट इज माइनस या कितना आ रहा है यस इंटू 1 1 माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा प्लस 2 इंटू यस वाई ऑफ एस, नेक्स्ट 2 इंटू -1 -2 प्लस वाई ऑफ एस इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस यस प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ वाई ऑफ एस कॉमन लेते हैं, फंक्शन ऑफ एस वाई ऑफ एस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ अगर मैं वाई ऑफ एस कॉमन ले रहा हूँ वाई ऑफ एस तो क्या होगा, यहाँ एस स्क्वायर है एस स्क्वायर, नेक्स्ट या वाई ऑफ एस कॉमन ले एस स्क्वायर, या भी वाई ऑफ एस की टर्म है, या क्या है प्लस 2s, नेक्स्ट यह क्या है वाई ऑफ एस कॉमन लिया तो यह कितना बचेगा 1 रहेगा, क्या आएगा 1। ओके, वाई ऑफ एस। नेक्स्ट अब रिमेनिंग टर्म्स, वाई ऑफ एस कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स कौन सी है माइनस यस है, और क्या है माइनस यस, या क्या है -2 ये दो टर्म्स। ओके, इक्वल टू या क्या है 1/s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। नेक्स्ट एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन 1 एडिशन 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो यह क्या होगा s प्लस 1 इंटू s प्लस 1, मतलब क्या होगा ए ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर y ऑफ s, यह क्या इस साइड पे 1/s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस s इस साइड पे क्या होगा प्लस s, -2 इस साइड पे क्या होगा प्लस 2 होगा। ओके, कैंसिल हो जाएगा 2 एंड -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह सिर्फ क्या रहेगा -s ही रहेगा। ओके, 2 एंड -2 कॉन्स्टेंट क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो -s इस साइड पे क्या होगा अभी प्लस s हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ प्लस s बच जाएगा। ओके, प्लस s। ओके, नेक्स्ट यह क्या है s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इस साइड पे क्या होगा डिवाइड, आपको क्या लिखना है y ऑफ s लिखना है। ओके, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद y ऑफ x फंक्शन आना चाहिए, तो इसलिए हमने y ऑफ s कॉमन लिया, y ऑफ s कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग टर्म्स आर एच पे शिफ्ट की, बाद में अभी y ऑफ s लिख सकते हैं, y ऑफ s इक्वल टू 1/1 s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्या होगा s प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 4 हो जाएगा, ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ब्रैकेट से ब्रैकेट रेस टू 4 प्लस s अपॉन s प्लस 1 क्या हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट अभी क्या बाकी है, अभी देखो यहाँ हमने y ऑफ s तो फाइंड किया, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था dy बाई dt में था, y डिपेंडेंट वेरिएबल t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपका आंसर सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का y इज फंक्शन ऑफ t में आना चाहिए। ओके, y डिपेंडेंट t इंडिपेंडेंट, तो आपका सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y इज फंक्शन ऑफ t आना चाहिए। वो कब आता है जब हम इस लैप्लास इनवर्स ऑफ y ऑफ s फंक्शन का अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें क्या मिलता है फंक्शन ऑफ t मिलता है, फंक्शन ऑफ t में उसका सॉल्यूशन मिलता है, तो इस y ऑफ s का अभी हमें क्या लेना पड़ेगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, तो अभी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों साइड पे हमने अप्लाई कर रहे हैं, y ऑफ s इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 4 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस साइन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो यहाँ अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी करते तो यहाँ हमें पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ s प्लस 1 ब्रैकेट रेस टू 4 तो ज़्यादा ABCD 4 कॉन्स्टेंट फाइंड करने पड़ते। अगर हम अदर प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इससे भी जल्दी इसका आंसर आ सकता है, इसलिए हमने 2 टर्म्स यहाँ रखी। अब यहाँ 2
टर्म्स का भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, और इसमें से एक क्या है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ओके, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ फंक्शन वाई ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वाई ऑफ टी आता है। ओके, और यहाँ भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड अप्लाई करने वाले, यहाँ भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने वाले। तो देखो यहाँ एस प्लस ए का फंक्शन है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, या फंक्शन ऑफ एस प्लस ए। तो यहाँ मैं फंक्शन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन करता हूँ। इफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ function of s, capital function of s is equal to f of t, then inverse Laplace transform of f of s plus a equal to e raised to minus at into inverse Laplace transform of function of s, inverse Laplace transform of function of s। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करनी है। तो यह देखो फंक्शन ऑफ एस प्लस ए के फॉर्म में ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, 1/s प्लस ए, मतलब एस प्लस ए के फंक्शन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यह भी देखो जहाँ जहाँ एस है वहाँ एस प्लस 1 है, लेकिन यहाँ क्या है, एस प्लस 1 है और यह एस प्लस ए के फॉर्म है, लेकिन यहाँ एस प्लस है क्या, नहीं है। तो यहाँ एस प्लस 1 हम बना सकते हैं, राइट। तो फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ ये एज इट इज, सपोज लैप्लास इनवर्स लैप्लास लिखता हूँ एज इट इज 1/s प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू 4, या फिर इसके लिए मैं अभी अप्लाई करता हूँ, इसी स्टेप में अप्लाई कर सकता हूँ। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए का आंसर क्या आता है, ई रेज टू माइनस ए टी। तो एस प्लस ए की वैल्यू कितनी, 1, तो आंसर कितना आएगा, ई रेज टू माइनस 1 टी, ई रेज टू माइनस 1 टी इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ क्या आता है, फंक्शन ऑफ एस। यहाँ एफ ऑफ एस प्लस ए है, तो यहाँ किसका इनवर्स लैप्लास लेना चाहिए, फंक्शन ऑफ एस, मतलब इस एफ ऑफ एस प्लस ए में, इस फंक्शन में एस प्लस ए की जगह क्या रिप्लेस करना है, ओनली यस। तो यहाँ देखो एस प्लस ए था, इसकी जगह सिर्फ यस से रिप्लेस करना है। तो यह क्या आएगा, 1/s रेज टू 4 आएगा, 1/s रेज टू 4। लेकिन जैसे इस टर्म के लिए हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, वैसे सेम इसी तरह यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या कौन सा फंक्शन होना चाहिए, एफ ऑफ एस प्लस ए। यहाँ एस प्लस ए है, लेकिन एस प्लस ए ऊपर है क्या, नहीं है, तो हम वहाँ एस प्लस फंक्शन ऑफ एस प्लस ए बना सकते हैं। यहाँ एस प्लस 1 था, डिनोमिनेटर क्या था, एस प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का। तो ऊपर भी यहाँ अगर इस पूरे फंक्शन में एस है, तो यहाँ भी सब जगह एस प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ एस प्लस 1 बना सकते हैं बाय यूजिंग एडजस्टमेंट, बाय टेकिंग एडजस्टमेंट +1 -1। ओके, ई रेज टू माइनस टी लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s रेज टू 4। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s रेज टू n इक्वल टू t रेज टू n माइनस 1 अपॉन गामा n, ये फार्मूला है। ओके, तो 1/s रेज टू n कितना है, 4, तो उसका फार्मूला t रेज टू n माइनस 1, मतलब t रेज टू 4 - 1 अपॉन गामा n, मतलब कितना, यहाँ n 4 है, प्लस ये देखो यहाँ इस माइनस साइन से हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, इस माइनस साइन से हम डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। तो क्या आएगा, इनवर्स लैप्लास s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर 1/s प्लस 1 हो जाएगा। देन या इस माइनस साइन से सेपरेट करेंगे, माइनस साइन, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अभी नेक्स्ट फ्यू लास्ट स्टेप्स आर रिमेनिंग। ई रेज टू माइनस टी क्यूब अपॉन गामा 4, मतलब कितना आता है, 3 फैक्टोरियल, गामा n इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इफ n इज इंटीजर। या n क्या है, इंटीजर 4 है, इसलिए गामा 4 क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ओके, प्लस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s प्लस ए, ओनली s प्लस ए, ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं है, तो उसका आंसर क्या आता है, e रेज टू माइनस ए टी। तो इसका इनवर्स क्या आएगा, e रेज टू माइनस टी आएगा। ओके, नेक्स्ट माइनस साइन,
इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+1 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, s+1 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर से हमें ये फॉर्मूला, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ फंक्शन ऑफ s प्लस ए है, यहाँ फंक्शन ऑफ s प्लस ए है, तो यह s प्लस ए, ए की वैल्यू कितनी 1, तो उसका आंसर क्या आता है e⁻1t, e⁻1t। आगे क्या है इनवर्स लैप्लास, क्या है फंक्शन ऑफ क्या है s, फंक्शन ऑफ s, या अगर f ऑफ s प्लस ए है तो यह फंक्शन ऑफ s, मतलब s प्लस ए की जगह क्या लिखना है, ओनली रिप्लेस s करना है। इन सिंपल लैंग्वेज s+1 की जगह s रिप्लेस करना है, तो यह क्या होगा 1/s², ओके। e⁻t into t³ 3 3 into 2 6 plus e⁻t as it is minus e⁻t as it is लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁴n। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁴n इक्वल टू t⁻n−1। t⁻n−1 मतलब क्या होगा 2a, n कितना है 2, तो t⁻n−1 मतलब 2-1 अपॉन gamma 2, ओके। y of t इक्वल टू t³ e⁻t अपॉन 6 प्लस e⁻t माइनस e⁻t t⁻1 अपॉन gamma 2 gamma n-1 फैक्टोरियल, मतलब क्या होगा 1-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, सॉरी 2-1 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी रहती है 1 ही रहती है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड।